हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सॉरी संडे बुलाना पड़ा so hope it's Sunday, so because we are in sleep, we have a coffee machine if you are in sleep. So again, good morning and thank you for coming. This is our first Laravel meetup and it's our first time hosting, so we didn't thought we will be having so much appreciation from the community. So yeah, my topic today is Laravel. It is a fantastic package that I have find. So before this, Hindi English सबको चलेगा mix? Okay, so yeah, मैंने एक पैकेज फाइंड किया था लारबर्ग और वो आज मैं प्रेजेंट करूँगा आपके सामने. बिफोर दैट, आप में से कितने लोगों ने लाइक पेज बिल्डर लारावेल में यूज़ किया है? कैन एनीबॉडी रेज योर हैंड्स? या फिर पेज बिल्डर कहीं पे भी यूज़ किया है? ओके, सो फॉर दोज हू हैव नॉट यूज्ड, लाइक मे बी उनके लिए एक अच्छा टेक अवे होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपन यूज़ कर सकेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द एजेंडा. It's not presenting. Okay. Just a minute. There are some technical issues. Okay, so yeah, this is resolved. Let's start. So this is the agenda for today. I will start with a little bit about my introduction. Then I will start with what is Gutenberg. I hope that you have all used Gutenberg and WordPress. Then I will start with the Laravel intro, like what is Laravel package. Then I will go through like how we can install Laravel, how we can use Laravel. Then there is one awesome thing about this package is that we can extend its functionality. Like हमको अगर कुछ components है, फिर कुछ ऐसे blocks है जो ये package में नहीं मिल रहे, तो हम अपनी तरफ से block बना सकते हैं as a custom block. So I will go through that also. Then finally we will have a demo app where I will show what we have done. Lastly, we will do some live coding. Then I will explain like some of the blocks that I have created, and then how we can even extend this package to a little bit more. So yes, little bit about me. My name is Dishant. I work here in this company, Anecton Technologies, as a full stack developer. As a full stack developer, half of the time I do code, and most of the time I spend time finding the bugs. So maybe you all can relate. So yeah, these are the technologies in which I work in, and this epsilon means like there are many more to come, but it was not the space, so I was not able to edit it. And if you want to connect with me, there are the links. Like I'm mostly active on Twitter and Reddit, so we can chat on. So yes. So Gutenberg. Have you ever used WordPress and Gutenberg? क्या किसी ने use किया है WordPress और Gutenberg? Can you raise hands? So okay. So for those who have not used, like Gutenberg is like a block editor in WordPress. वो क्या करता है, like हमारा जो पेज होता है हम उसको विद इन ब्लॉक्स बिल्ड कर सकते हैं. सो विद इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स हम नए ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, पुराने ब्लॉक्स रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉक्स को रीअरेंज कर सकते हैं, प्लस जो ब्लॉक के कंटेंट्स होते हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं. और विद इन ब्लॉक्स हम गुटेनबर्ग बाय डिफॉल्ट हमको कुछ ब्लॉक्स देता है, जैसे कि एक पैराग्राफ ब्लॉक हो गया, हेडिंग ब्लॉक हो गया, इमेज ब्लॉक हो गया, ऐसे सारे ब्लॉक्स देते हैं. सो जस्ट टू शो यू अ डेमो हाउ इट लुक्स. या अगेन टेक्निकल इशू. Escape. Yes, so just to show you a demo, like this is how it looks. So as you can see, ये एक ब्लॉक है जिसमें हम सारे इंडिविजुअल कंटेंट्स एडिट कर सकते हैं. लाइक ये पैराग्राफ हो गया, ये ब्लॉक का ये कंटेंट हो गया, ये बटन हो गया. सिमिलरली हम यहाँ से नए कुछ ब्लॉक्स चाहिए तो हम ऐड भी कर सकते हैं ये प्लस बटन से. और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं. अगर यहाँ पे से नहीं तो हम यहाँ से भी ये सारे अपन अलग अलग चीज़ें कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं ब्लॉक्स में. और जैसे ये एक ब्लॉक हो गया, फिर ये नीचे एक ब्लॉक हो गया, ये सेक्शन हो गया. सो हम हमारा जो पूरा वेबसाइट का पेज है ऐसे अलग अलग सेक्शंस में क्रिएट कर सकते हैं. ये अभी तक वर्डप्रेस में पॉसिबल था. सो दिस वॉज वेरी ईजी. वर्डप्रेस सबने यूज़ किया इसलिए सबके लिए फेमिलियर होता था.
तो एक लारावेल की ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसने क्या किया, सेम जो पैकेज था वो लारावेल के लिए इसका कोड पोर्ट कर दिया और उसका वो लोग ने नाम रखा लाराबर्ग. सो सो ये लोगों ने वर्डप्रेस का जो गुटनबर्ग का पैकेज था वो लाराबर्ग में पोर्ट किया और उसकी सारी फंक्शनलिटी थी, जैसे ब्लॉग्स एडिट करना, ब्लॉग क्रिएट करना, ब्लॉग्स को रीअरेंज करना, ब्लॉग्स का कंटेंट अपडेट करना, वो सारी फंक्शनलिटी लारावेल में लाई ये लोगों ने. एंड बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, तो अगर हमको कुछ डाउट है तो हम इसके पैकेज या फिर इसके कंटेंट को देख सकते हैं. सो नेक्स्ट लेट्स सी लाइक ये काम कैसे करता है. सो आपने कोई ने टाइनीमाइस यूज़ किया है, टाइनीमाइस या फिर रिच टेक्स्ट एडिटर कोई भी. सो हम उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, लाइक हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं और बाद में उसको इनिशियलाइज करते हैं जावास्क्रिप्ट से और उसका जो कंटेंट होता है वो MySQL में HTML के थ्रू सेव करता है. सो सेम लाइक रिच टेक्स्ट एडिटर ये भी उसी की तरह काम करता है. लाइक हमको एक टेक्स्ट एरिया इनिशियलाइज करने का और उसको JS से इनिशियलाइज करने का और उसके बाद वो जो सेव करेगा वो अपने फॉर्मेट में सेव करेगा. सो इट्स जस्ट लाइक रिच टेक्स्ट एडिटर. सो अगर आपने वो यूज़ किया है तो आपको ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगा. सो नेक्स्ट ओके, सो इसको इंस्टॉल कैसे करने का. सो जस्ट लाइक एनी अदर कंपोजर पैकेज, कंपोजर रिक्वायर्स से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके बाद हमको इसकी वेंडर फाइल्स जो होती है वो पब्लिश करने की और लास्टली इसकी जो कुछ एसेट्स फाइल्स होती है, लाइक इसकी जो इनबिल्ट CSS फाइल्स होती है, JS फाइल होती है, वो हमको अपने पैकेज में इंपोर्ट करने की. और बाय डिफ़ॉल्ट ये रिएक्ट यूज़ करता है. सो अगर हमारे पैकेज में डिपेंडेंसीज में रिएक्ट नहीं है तो हम रिएक्ट डायरेक्ट यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, फिर NPM से इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके ओके, हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, अब यूज़ कैसे करेंगे. सो यूज़ करने का भी बहुत सिंपल है. जस्ट लाइक एनी रिच टेक्स्ट एडिटर, हमको सबसे पहले तो एक ऐसा टेक्स्ट एरिया होता है वो डिफाइन करने का इस तरह से. उसके हम ID से आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया है. नेक्स्ट हमको JS के थ्रू ये पैकेज को टेक्स्ट एरिया को इनिशियलाइज करने का फॉर लाराबर्ग. वंस यू हैव इनिशियलाइज इट, जस्ट लाइक रिच टेक्स्ट एडिटर, ये भी हमारी तरफ अपने को वो दे देगा. और अगर हमको कंटेंट रेंडर करना है, लाइक हमने सेव तो कर लिया एडिटर की तरह, अब इसका कंटेंट रेंडर करना है तो हम सीधा ऐसे पोस्ट डॉट कंटेंट से रेंडर कर सकते हैं या फिर इसकी जो इनबिल्ट मेथड्स होती है वो भी इस तरह से रेंडर कर सकते हैं. सो वंस वी हैव सेट इट अप, हमको कुछ ऐसा पैकेज देखने को मिलेगा. सो ये तो हो गया ये पैकेज को यूज़ करने का तरीका. ओके, so what is a good thing about this package is that we can extend its functionality through custom blocks. Custom blocks मतलब कि हम पैराग्राफ या फिर इमेज टैग है, इसके अलावा हम अपने खुद के ब्लॉक्स बना सकते हैं. लाइक मैंने कैरोसेल ब्लॉक बनाया है तो उसके कंटेंट्स में डाल सकता हूँ, या फिर ये सेक्शन ब्लॉक है तो मैं उसके कंटेंट्स में अपडेट कर सकता हूँ, या फिर ऐसा एक इन्फो सेक्शन होता है जिसमें लाइक एक साइड पे इमेज होगी, यहाँ पे हेडिंग होगा और यहाँ पे लाइक पैराग्राफ होगा, बटन होगा. सो ये भी हम हमारे खुद के कस्टम ब्लॉक्स ऐसे डाल सकते हैं. So the process to create custom block is also very simple. Like what we have to do, ये पैकेज जो है हमको एक रजिस्टर ब्लॉक करके एक फंक्शन देता है. ओके, उसमें हमको हमारे ब्लॉक की कैटेगरी और स्लग डालने का. नेक्स्ट हमको हमारे ब्लॉक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालने का. नेक्स्ट विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, लाइक ये कैटेगरी और ये कैटेगरी सेम होनी चाहिए सो दैट इट विल वर्क. लास्टली हमको एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो ब्लॉक के इनपुट्स होते हैं, लाइक जैसे ये पुराने ये ब्लॉक में हो गया कि हमको एज ए इनपुट कितनी स्लाइड्स चाहिए, फिर स्लाइड का इमेज क्या होना चाहिए, स्लाइड का टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, बटन का नेम क्या होना चाहिए, फिर बटन की लिंक क्या होनी चाहिए. सो वो सब जो इनपुट्स है हम वो एट्रीब्यूट्स में सेव करते हैं. नेक्स्ट हमको एक एडिट फंक्शन डिफाइन करना होता है. वो फंक्शन क्या करेगा, जो भी एडिटर में फॉर्म दिखेगा अपने को वो रेंडर करेगा एडिट फंक्शन. और लास्टली हमको एक सेव फंक्शन डिफाइन करना होता है. वो फंक्शन क्या करेगा, जब भी एडिटर सेव करेगा तो क्या एक्चुअल HTML जनरेट होना चाहिए. लाइक ये जो ब्लॉक का HTML होगा एक्चुअली वो फंक्शन सेव फंक्शन में हम HTML डिफाइन करेंगे. सो ऐसे हम अपना कंपोनेंट खुद का ब्लॉक बना सकते हैं. अगर अब हमने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया, हमको उसको रजिस्टर करना होता है. सो वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन एंड दिस इज हाउ वी कैन रजिस्टर इट. नेक्स्ट इज कस्टम कैटेगरीज. सो अपार्ट फ्रॉम कस्टम ब्लॉक्स, लाइक ये सारे जो ब्लॉक्स होते हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी होते हैं. लाइक वर्डप्रेस में भी आपने देखा होगा तो कुछ टेक्स्ट कैटेगरी होती है, कस्टम कैटेगरीज होती है. वैसे हम खुद की भी कैटेगरीज बना सकते हैं. लाइक ये ब्लॉक्स हमारे कस्टम कैटेगरीज में आएंगे. सो
हम कस्टम कैटेगरीज भी उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे. सो ये सब चीज़ें हम एक बार डेमो में भी देखेंगे. सो लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड और वी कैन हैव द Q&A एट द एंड. हाँ, सो कस्टम कैटेगरीज भी बहुत सिंपल है. हमको एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करने का, रजिस्टर कैटेगरी, उसमें जो भी कैटेगरी का स्लग होगा वो, और जो भी कैटेगरी का टाइटल होगा वो वहाँ पे लिखने का. नेक्स्ट, जो वर्डप्रेस के हुक्स होते हैं हमको वो भी एक्सपोज होते हैं ये ब्लॉक से. सो हमको वो हुक्स लेने के, अपनी सारी कैटेगरीज लेने की और उसके थ्रू फिल्टर करने का, और लाइक यहाँ पे लास्टली हमको अपनी खुद की कैटेगरी ऐसे डाल देने की. सो दिस इज हाउ वी कैन. ओके, अच्छा इफ इट्स नॉट विजिबल, लाइक आप बोल सकते हो थोड़ा जूम करने के लिए. हाउ वी कैन जूम इट. Don't think PowerPoint zoom का option देता है, so we'll see this in code in action. Is it okay? Yeah. So yeah, like this is how we can register our custom categories. Next, let's see how we have actually implemented this in code. First, I have prepared a demo for this presentation, just like vanilla bootstrap मैंने use किया है. And just now I noticed that I have kept the nav bar here also. I forgot to rename because we are developers, we copy paste it. So yeah, so मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वर्डप्रेस का सिंपल बूटस्ट्रैप का इनिशियलाइज किया है, और एक बूटस्ट्रैप का सीधा क्या बोलते हैं स्टॉक लेके यहाँ पे एक सिंपल क्रड बनाया है. हम यहाँ पे क्रड में क्या कर सकते हैं, सो हम हमारी जो पोस्ट होती है वो देख सकते हैं. It will take some time to load. Okay. Yes, thank you. So मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्रड बनाया है पोस्ट का. यहाँ पे सारी पोस्ट लिस्ट की है. हम कोई भी पोस्ट का कंटेंट ऐसे व्यू कर सकते हैं लाइक दिस, और अगर हमको कंटेंट एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ फील्ड्स भी बहुत सिंपल है. लाइक यहाँ पे टाइटल है, कोई स्लग है, फिर एक्चुअल पोस्ट का कंटेंट है, एंड यहाँ पे उसका स्टेटस है. सो या, एंड this is how the Gutenberg editor looks like, just like typical WordPress editor. So let's say if you want to edit the title for H1, we can edit it here. हमको अपने ऑप्शंस भी मिलते हैं, लाइक कौन सा H1 रखना है, हमको H1 या फिर H5 रखना है, फिर H6, या फिर हमको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर लिंक्स डालनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे अपने नए ब्लॉक्स डाल सकते हैं. सो लेट्स से वी वांट टू ऐड अ न्यू ब्लॉक कॉल्ड कोड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल SCON. Yeah, like this is how we can add code here. Assume that this is a console log. Then we have the image, we can add codes, and later if you have used later कोई latest अपने WYSIWYG या फिर कोई editor use किया हो तो यहाँ पे slash commands मिलते हैं अपने को. So with this also यहाँ पे बहुत सारे list होती है जैसे हम अलग अलग components से भी blocks इसके add कर सकते हैं. So yeah, this is how it looks like. Next, suppose let's say we want to add some attributes to this image, like we want to add the alt text of the image, or we want to update the dimensions. Like इसकी size मेरे को ये बराबर नहीं लगी, so मेरे को size छोटी करनी है, तो मैं ऐसे size भी छोटी कर सकता हूँ. और अगर कोई इसकी खुद की CSS डालनी है या फिर कोई एक्स्ट्रा एंकर डालना है तो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट भी अपन डाल सकते हैं. So once you are finalized with content, we can do save, we visit. Yeah, as you can see, this is how it will look like. So let's see how we have actually installed and implemented this package. So just like our typical CRUD, here is the post routes. There are all the routes that I have created, and let's start with the view. Is it visible? Fonts are visible to everybody in the back? Okay.
सो आफ्टर लाइक मैंने पैकेज इंस्टॉल किया, उसके वेंडर पब्लिश फाइल्स की, उसके बाद हमको उसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐसे लिंक करनी होती है, और लास्टली अपने को अपनी जीएस फाइल्स होती है वो भी ऐसे लिंक करने की होती है। और बिकॉज वी हैव यूज वाइट ईयर, वाइट के साथ भी डिपेंडेंसीज जो होती है हम ऐसे लिंक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये तो हो गया लेआउट्स। लेट्स स्टार्ट विथ पोस्ट। So once we have installed the package and initialize all the dependencies, we have the form here to create post. Here I have the content, like this is the text area that is used to initialize. What I have done is I have added the post ID, HTML ID for this here, and then in the JS file, in the app.js file I have initialized it like this. So अगर ये editor ऐसे initialize कर दिया तो अपने को एक वी विल बी ग्रीटेड विद सम एडिटर लाइक दिस। अगर ये आपका नया पोस्ट पेज है तो पोस्ट क्रिएट का पेज में ऐसे दिखेगा अपने को। या सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक बाय डिफॉल्ट। नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम ब्लॉक्स, बिकॉज यहाँ पे तो लाइक हम इसके जो बाय डिफॉल्ट टैग्स होते हैं वो ले सकते हैं। लाइक ये डिफॉल्ट में हमको प्रोवाइड करता है H1 होता है, पैराग्राफ्स होता है, कोड होता है। अब बोलोगे लाइक ये तो रिच टेक्स्ट भी देता है, सो इसमें और रिच टेक्स्ट में फ़र्क क्या है? सो हम यहाँ पे अपने खुद के कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे किए हैं कंपोनेंट्स। सो लेट्स से देयर इज़ अ इन्फो बॉक्स कंपोनेंट, ये खुद का एक कस्टम कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है। ये एज ए इनपुट लेता है कोई टाइटल, सो लेट्स से इट इज टेस्ट इन्फो बॉक्स। इसमें एक डिस्क्रिप्शन भी जाता है, वो भी लेट्स अज्यूम दैट इज टेक्स्ट इन्फो बॉक्स। The image URL, let's get it from here. Let's add the button here, learn more. Assume that we have the same memory aliases. Select status, and so let's set title. So it's assume that this slug is also like this. So once we have created it, this is how it will look like. Yeah, so this is a custom block. So देख इसको कैसे हमने सेटअप किया वो देखते हैं। So before info blocks, like let me show you how we can set up a sample example custom block. So the sample custom blocks look like this custom block. Add a block below this. So this is a sample custom block that we have created in the edit form. यहाँ पे edit form लिखा हुआ है इसके टेक्स्ट में, और हम जब सेव करते हैं यानी इट शुड डायरेक्ट टू व्यू, सो सेव करते हैं तो यहाँ पे सेव व्यू लिखा हुआ आता है। सो हाउ दिस इज सेटअप इज लाइक दिस। हमने एक फाइल क्रिएट किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो index.jsx। सो बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट यूज़ करता है, सो इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन रिएक्ट यू विल फाइंड इट एट होम। या सो ये जो फंक्शन है ये हमको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, फिर पैकेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालने की, व्हाट इज़ द कैटेगरी दैट इज ब्लॉक बिलोंग्स टू। सो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया, सो दीज आर ऑल द कैटेगरीज दैट बाय डिफॉल्ट द गुटेनबर्ग प्रोवाइड्स। हियर इट्स टेक्स्ट रिटर्न, सो इफ इट इज नॉट विजिबल एट बैक लेट मी प्रोनाउंस लाइक दिस, इट इज टेक्स्ट रिटर्न। These are the blocks in text categories, these are the blocks in media categories. उसी की तरह हमने अपनी खुद की एक कैटेगरी क्रिएट की है जिसका नाम है टेस्ट, TEST, और उसके अंदर ये ब्लॉक डिसाइड करता है। सो दैट कैटेगरी इज इनिशियलाइज थ्रू हियर लाइक दिस। देन हमको एक ब्लॉक का स्लग देना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये ब्लॉक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो कैटेगरी होती है वो, और लास्टली क्या एडिट फॉर्म में दिखेगा। सो लास्ट टाइम हमको जो एडिट फॉर्म में दिख रहा था वो यहाँ पे लिखने का,
और जो सेव फॉर्म में एक्चुअली HTML सेव होगा वो अपने को यहाँ पे लिखने का। इतना कर दिया, उसके बाद इसको रजिस्टर करने के लिए हमको ये फाइल इंपोर्ट करने की यहाँ पे इस तरह से, और ये फंक्शन हमको यहाँ पे कॉल करने का। दिस इज एग्जाम्पल ब्लॉक। व्हाई इट इज कमेंटेड लाइक आई विल गो कम बैक टू इट अगेन। सो या, और बिकॉज इफ यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने फंक्शन एक्सपोर्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे इसी तरह हम कॉल कर सकते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग। सो दिस इज हाउ टिपिकल ब्लॉक custom block works. So but we are not here for typical custom blocks. Let's see how the info box works. So in info box we have 5 inputs here: the title, description, image URL, button URL, and style. The way it works is that first we import some of the dependencies from the block. Next हमको कुछ HTML के components होते हैं, like हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ किया होगी वर्डप्रेस की रिएक्ट की UI लाइब्रेरी, तो हम वहाँ पे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, लाइक बटन हो गया, कार्ड हो गया, पैनल हो गया। सो वैसे सारे कंपोनेंट्स हमको वर्डप्रेस में से भी मिलते हैं, सो हम वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम वर्डप्रेस का एक कंपोनेंट होता है वो इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए। नेक्स्ट हम यहाँ पे जस्ट लाइक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया था इस तरह से, वो सेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं ब्लॉक में। सो यहाँ पे भी टाइटल है उसका, कैटेगरी है, एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो इनपुट्स थे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, जो बटन का टेक्स्ट होगा, लिंक, स्टाइल, वो सब यहाँ पे डिफाइन किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे एडिट में हाँ जो हमको रेंडर फंक्शन लिखना होता है वो लिखते हैं। सो डज एनीबडी नो रिकॉग्नाइज दिस सिंटैक्स, क्लास एक्सटेंड्स कंपोनेंट? सो ओके, लाइक हम सब ने रिएक्ट में हुक्स में ऐसे यूज़ किया है। सो दिस इज अ ओल्ड वे टू क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट, जो क्लास कंपोनेंट होते थे। बाय डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज़ करता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया था। सो या हमने यहाँ पे एडिट में हमारा क्लास कंपोनेंट डिफाइन किया है। ऐसे क्लास कंपोनेंट में रेंडर मेथड होती है, सो हम रेंडर मेथड डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सारे प्रॉप्स लेते हैं। प्रॉप्स में जो हमारे इनपुट्स थे, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारे हमको मिलते हैं, और वो हमको 2 चीज़ देता है, एक एट्रीब्यूट्स और एक सेट एट्रीब्यूट्स। अगर आपने रिएक्ट हुक्स यूज़ किया होगा तो आपको इसका कुछ आइडिया होगा, लाइक हम हुक्स भी इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें स्टेट मिलता है और सेट स्टेट मिलते हैं। सो उसी तरह से हमको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, सेट एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा एडिट का फॉर्म होता है हम यहाँ पे यहाँ से रेंडर करना चालू कर दें। लाइक दिस इज द कार्ड, दिस इज द कार्ड हेडर। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंट्रोल हो गया, नेक्स्ट हो गया टाइटल का टेक्स्ट इनपुट हो गया, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट इनपुट हो गया। और if you want to set the content, we can directly set it like this dot set props dot set attributes, और यहाँ पे हमको खाली उसका की देने का और उसकी जो वैल्यू होगी वो देने की। और उस तरह हमने यहाँ पे फॉर्म के जो HTML होता है फिर JSX होता है वो लिखा। नेक्स्ट हमने सेव फंक्शन में भी जो उसका HTML कैसे दिखेगा वो डिफाइन किया। एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो इसकी स्टाइल है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ स्टाइल हियर। फर्स्ट इज लेफ्ट कंटेंट राइट इमेज, एंड नेक्स्ट इज राइट कंटेंट लेफ्ट इमेज। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल उसका जो HTML होगा फिर जो भी कंटेंट होगा वो चेंज होगा। सो वो स्टाइल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अलग अलग HTML रिटर्न कर सकते हैं। सो या हमने यहाँ पे सेव फंक्शन लिख दिया, एंड सो वंस वी हैव डिफाइंड दिस ब्लॉक फाइल, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज लाइक अदर थिंग्स। वी हैव टू फॉर क्लीनलीनेस पर्पज मैंने यहाँ पे इसको अलग फाइल में रखा, बिकॉज ये एक फाइल में तो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। सो या यहाँ पे भी लास्ट ब्लॉक की तरह हमने यहाँ पे फंक्शन में इसको इनिशियलाइज कर दिया इस तरह से, और ये जो फाइल है ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है जो रजिस्टर ब्लॉक है। सो लाइक हमारे जो सारे कंपोनेंट रजिस्टर होते हैं वो सारे एक ही फाइल में हो, और हमारी जो ऐप.js है वो थोड़ी क्लीन दिखे। लास्टली ये फाइल को मैंने ऐप.js में इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया। सो रजिस्टर ऑल लाराबर्ग ब्लॉक्स, ये कॉल करेगा ये फाइल को, ये फाइल ये फंक्शंस को कॉल करेगी, ये फंक्शंस इन्फो बॉक्स को कॉल करेगा। इन्फो बॉक्स यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे रजिस्टर होगा, और ये सारे ब्लॉक की डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन लाइक हम इस तरह से हमारे कंपोनेंट बना सकते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर एनीबडी? विल हैव अ Q&A डाउट, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। इज इट गेटिंग बोरिंग? जस्ट टू बी क्यूरियस। ओके, सो लाइक ये तो हो गया। लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड आवर ओन फील्ड्स। सो लेट्स से दैट इसमें मेरे को टैग्स डालने हैं, लाइक ये सपोज ये पोस्ट जो है वो टैग बिलोंग करती है लाइक लाइफस्टाइल को या फिर डेव को या फिर कोडिंग आवर को, तो उस तरह से हमको टैग्स डालने हैं। तो हाउ वी कैन ऐड दोज टैग्स? सो फॉर दैट
what we can do is that copy paste this title to create a different attribute. Why it is not working? This is what happens when we do live coding during presentation, by the way. Come on, let's save it as tags. नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके टाइप डिफाइन किए, लाइक स्ट्रिंग के अलावा हमको कोई एरे होता है तो वो डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर इनपुट होता है तो वो डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमको यहाँ पे उसका इनपुट डालना पड़ेगा. सो लेट्स कॉपी द इनपुट ऑल्सो. Let's assume it will work. टैग्स यार हमको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फिर जो फॉर्म के थ्रू वैल्यू आएगी जो हो गया एट्रीब्यूट्स और टैग्स के अंदर, वो हमको यहाँ पे सेटअप करनी पड़ती है. सो टैग्स और लास्टली अगर वैल्यू चेंज हुई तो हमको यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे डिफाइन करना होता है. सेव. Next, let's say that we want to render it here before description. We'll save it like tags here. So let's make sure that this is available in different style as well. Save. Let's make sure npm is running. Okay. Yeah. So because it's running और हमने हमारे उसमें change किया है, so it will break. What we have to do for that is do attempt recovery. And then you can see like हमने यहाँ पे अपना tags input डाल दिया है. See if I can zoom it in Chrome. As you can see हमारे पास यहाँ पे tags input है. So let's add some tags. Dev code. Okay. Let's see that ये हमारे पास ये tags है. Lastly we'll save. Next we can see it here. As you can see यहाँ पे हमारे जो tags हो गए हैं वो भी आ गए हैं. So good, like अच्छा है. Okay. I was just checking you are awake or not because it's Sunday and I've already called you in the morning. We have already called. So yeah, this is how we can add our own custom blocks and we can add our own properties. So this is the first block that I have created. Let me walk you through another block. So say an example of sections. Posts. हम सभी ने लाइक कोई भी वेबसाइट होती है ऐसे फीचर सेक्शंस देखे होंगे जहाँ पे कोई इमेज होती है, कुछ टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और यहाँ पे कुछ बटन होता है एक्शन के लिए. सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस. इसके एडिट में देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन की आईडी है, यहाँ पे टाइटल है, सो उसका सेक्शन का डिस्क्रिप्शन है. लास्टली वी हैव आवर ब्लॉक्स. तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि उस सेक्शन में क्या दिखेगा, लाइक इंडिविजुअल जो उसके कार्ड्स होंगे उसमें क्या दिखेगा. सो यहाँ पे वो कार्ड का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज यूआरएल, बटन एंड लाइक दिस. सीक्वेंस भी है, लाइक बेस्ड ऑन सीक्वेंस वी कैन सॉर्ट इट. सो और यहाँ पे ऐसे हमने 3 डाले हैं, लेकिन अगर हमको कुछ और ब्लॉक्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम ब्लॉक्स. इसका कंटेंट अपडेट कर सकते हैं. और सपोज हमको ये ब्लॉक नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं. सो या दिस इज हाउ लाइक एनीबडी जो ब्लॉक एडिट करता होगा वो उसको ऐसे यूआई दिखेगा. हिट सेव.
अगेन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया इसलिए वैसे के वैसे ही दिख रहा है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट. जस्ट लाइक अदर ब्लॉक्स, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक जेएस फाइल बनाई, इंडेक्स जेएस फाइल बनाई. यहाँ पे सारे इसका रजिस्ट्रेशन का पार्ट यहाँ पे होगा और जो भी ब्लॉक की डेफिनेशन होगी वो यहाँ पे होगी. नेक्स्ट टूल फॉर्म. Okay, so here just like other places we have imported some components, then we have imported more components from WordPress library. हमने यहाँ पे WordPress का जो React component होता है वो यहाँ पे import किया. then हमारे styles जो होती है like हमको left content चाहिए, right content चाहिए, center content चाहिए, वो define किया. और हमने just like other places हमने यहाँ पे सारी definition लिखी है. title क्या होगा, category किसको belong करेगी और क्या क्या inputs होंगे. यहाँ पे section है और यहाँ पे आप देख रहे हैं like ये blocks है. ये blocks actually जो feature cards होते हैं उसको render करते हैं. यहाँ पे इस सब की डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, लेकिन इसके डिफ़ॉल्ट टाइप है एरे. सो या नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऐड ब्लॉक का फंक्शन है. ये क्या करेगा, उसका स्टेट चेंज करेगा, जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसको लेके एक और एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करेगा. सो दिस इज़ हाउ लाइक एक नया ब्लॉक ऐड होता है स्टेट में. नेक्स्ट अपडेट ब्लॉक डेटा, जो भी ब्लॉक का एक कंपोनेंट होगा, लाइक ब्लॉक की जो भी डेटा होंगे इंडिविजुअल ब्लॉक से, लाइक टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर कोई इमेज यूआरएल हो गई, वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे भी मैंने क्या लिया है, टेक्स्ट, जो कि उसका वैल्यू होगा एक्चुअल इनपुट का वो. इंडेक्स मतलब कि हमको कौन से ब्लॉक में डालने का है. की मतलब कि हमको कौन सी की अपडेट करने की है वो ब्लॉक की. और लास्टली डेटा टाइप, क्या वो टेक्स्ट है या फिर नंबर है. सो बेस्ड ऑन डेटा टाइप हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लाइक उसको इन पार्ट्स कर सकते हैं और इस तरह से. नेक्स्ट लास्टली हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सेट किया है इस तरह ब्लॉक से. नेक्स्ट एक रिमूव ब्लॉक का फंक्शन है, लाइक हमको ब्लॉक नहीं चाहिए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. सो टिपिकल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ब्लॉक डॉट फिल्टर रिमूव एंड सेट एट्रीब्यूट्स. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक रेंडर ब्लॉक्स फंक्शन है. सो ये जो पैनल का जो फॉर्म है, लाइक जो दिखेगा और यहाँ पे जो जो इनपुट्स होंगे, पैनल का टाइटल होगा, वो टाइटल आ रहा है रेंडर ब्लॉक्स फंक्शन से. यहाँ पे भी हमारे जितने ब्लॉक्स होते हैं हम उसको मैप करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक्स हम एक पैनल क्रिएट करते हैं और उसके सारे जो इनपुट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं. यहाँ पे इनपुट्स डिफाइन हो गए पैनल के इंडिविजुअल ब्लॉक्स के. और नेक्स्ट हम जो फाइनल रेंडर फंक्शन होता है जो एक्चुअल में HTML रेंडर करेगा पूरे कंपोनेंट पूरे ब्लॉक का, वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं. सो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, सेट एट्रीब्यूट्स इज लाइक अदर प्लेसेस. और यहाँ पे हम सारे इनपुट्स लेना चालू करते हैं, लाइक ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो इसकी स्टाइल होगी. लास्टली हम जो हमारा रेंडर ब्लॉक्स का जो फंक्शन था जो एक्चुअल में इंडिविजुअल ब्लॉक्स के फॉर्म को रेंडर करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं. क्या रेंडर ब्लॉक्स, देन हम यहाँ पे ऐड का भी बटन ऐड करते हैं जिससे हम ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं. या सो दिस हाउ द एडिट फंक्शन लुक्स लाइक. सेव फंक्शन भी बहुत सिंपल है, लाइक जो टिपिकल जो वर्डप्रेस का जो बूटस्ट्रैप का जो कंपोनेंट्स होते हैं हम वहाँ पे यूज़ करके हमने HTML यहाँ पे रेंडर किया है. यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल हमने एक वेरिएबल बनाया और वो स्टाइल के वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ किया है टू अलाइन द स्टाइल ऑफ द कंपोनेंट. देन हमारे जितने भी ब्लॉक्स थे वो सबको हमने मैप किया और सॉर्ट किया डिपेंडिंग अपॉन द ID. सो हमने यहाँ पे सीक्वेंस का ऑप्शन देखा होगा. So यहाँ पे सीक्वेंस है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस वी सॉर्ट दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर एंड वी जस्ट रेंडर व्हाट इज लाइक रिक्वायर्ड. सो या this is how this section block is rendered. I have also created a slider block, but because of time permits I cannot go through the slider block. This is available on GitHub, so आप explore कर सकते हैं slider block का. Okay. Next, so up till now we have seen like how we can use the editor, how we can create our custom blocks as well as categories. किसी को लगता है ये useful है अभी तक? किसी को लगता है नहीं useful है ये अभी तक? I'm just making sure you are awake, like that's why. Okay. So yeah, let's go back to PPT. Okay. We have seen how we have used the app. We have seen how live coding over the info blocks, and we have also seen the slider and section blocks. Next, like अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, it's just like a tip of an iceberg. मीनिंग लाइक ये तो बहुत बेसिक फंक्शनलिटीज़ है. इट बी शो यू हमने इसको एज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किस तरह यूज़ किया है. सो here is our website. This Laravel, it's a demo website. So if you want, you can visit it. It's live as well.
यहाँ पे देख रहे हो ये भी सारे एक ब्लॉक्स की तरह स्ट्रक्चर है. सो ये एक फर्स्ट हीरो ब्लॉक हो गया. यहाँ पे कुछ है, कंटेंट है, फॉर्म है. नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइडर्स हो गए कुछ. फिर यहाँ पे एक टॉप स्टोर्स का ब्लॉक हो गया. और इस तरह से ये पूरा पेज जैसे ब्लॉक्स में स्ट्रक्चर्ड है. ओके. सो नेक्स्ट, टू एडिट द कंटेंट, इट्स जस्ट लाइक आवर टिपिकल CMS. यहाँ पे होम का एडिट है. और हाँ, just like other blocks, we have added blocks here. So it is the same editor. So like it's not like it's very bad package. We are actually using in production and it's very helpful to us. So हाँ, ये जो हो गया हमारा हीरो ब्लॉक हो गया. हमने उसको भी ऐसे नेस्टेड ब्लॉक में लिया है. लाइक ये जो हेडिंग कंपोनेंट हो गया, हाँ ये हेडिंग कंपोनेंट है, ये रहा. नेक्स्ट, उसी के साथ हमने यहाँ पे सेक्शन यूज़ किया है कुछ ब्लॉक. जो अभी हमने सेक्शन ब्लॉक देखा फीचर्स वाला, उस तरह से सेक्शन ब्लॉक है. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल, लिंक, जो कंटेंट होगा वो, और जो इमेज, और वो यहाँ पे रेंडर हो रही है. यहाँ पे भी इसकी सॉर्टिंग है. सो बेस्ड ऑन सीक्वेंस वी कैन ऐड इट. नेक्स्ट, वी शो यू इंटरेस्टिंग ब्लॉक दैट वी हैव क्रिएटेड. दिस इज द स्लाइडर. देन सो यहाँ पे एक टॉप स्टोर्स का ब्लॉक है. अब ये जो सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हैंडपिक स्टोर्स है. यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के वाइज स्टोर है. लाइक ये सारे जो स्टोर्स है ये ऑनलाइन गेम्स को बिलोंग करते हैं, या फिर ये जो सारे स्टोर्स हैं ये बुकिंग के वेबसाइट्स को बिलोंग करते हैं. और सो ये जो सारे स्टोर्स है डेटाबेस से आ रहा है एक्चुअली. सो हम वो कैसे कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑप्शन डाला है कि हमको फर्स्ट स्टेप दिखाना है कि नहीं हैंडपिक स्टोर्स का. नेक्स्ट, हमने यहाँ पे उनको लॉजिक का ऑप्शन दिया है. लाइक हमको किस तरह से सॉर्ट करना है. लाइक पॉपुलर स्टोर्स पिक करने हैं फर्स्ट टैब में, या फिर हमको स्पेसिफिक स्टोर लाइक हैंडपिक स्टोर लेने हैं, हमको कुछ गिने चुने स्टोर्स लेने हैं. ये स्टोर्स जो भी है वो डेटाबेस से आ रहे हैं. सो हम यहाँ पे लेंगे. नेक्स्ट, यहाँ पे कैटेगरीज का भी ऑप्शन है. सो हम यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं. लाइक ये कैटेगरीज के मेरे को सारे स्टोर्स चाहिए. होप इसमें कैटेगरीज हो, नहीं है, इसमें कैटेगरीज होनी चाहिए. सो हाँ, लाइक ऑनलाइन गेम्स में मेरे को स्टोर्स दिखाने हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे हमने ऐड किया है. येस, सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन हैव यूज दिस ब्लॉक. सो विद दिस लाइक पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. लाइक आपको डेटाबेस से कंटेंट रेंडर करना है वो भी रेंडर कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल API कॉल करके रेंडर करना है वो भी रेंडर कर सकते हैं. सो यस, सो विद दिस इट्स प्रेटी मच इट. इन समरी, लाइक जो इसका एक्सपीरियंस होता है वर्डप्रेस की तरह होता है. सो फिर हम किसी के लिए CMS बना रहे हैं और वो अगर इंसान वर्डप्रेस से फेमिलियर है तो उसको ये ज़्यादा नया नहीं लगेगा, उसको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो जल्दी वर्डप्रेस की नॉलेज को यहाँ पे अपने CMS में ब्रिंग इन कर सकेगा. नेक्स्ट, ये हाईली कस्टमाइजेबल है. हमने देखा कि कितने अलग टाइप के ब्लॉग्स बना सकते हैं, कितने ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं. डेटाबेस से हमको कंटेंट एंटर करना है वो कर सकते हैं. सो यस, लास्टली जो हमको कस्टम ब्लॉग्स क्रिएट करने होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट यूज़ करते हैं. सो अगर आपके पास रिएक्ट का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपोजर है तो आपको ये नया नहीं लगेगा एडिट करना. और लास्ट ऑसम थिंग है, ये ओपन सोर्स है. सो वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स, गुटनबर्ग के जो ब्लॉग्स है वो भी ओपन सोर्स है, और लारा वर्क भी ओपन सोर्स है. सो हम किसी में भी अटके तो हम ये गिटहब रिपो ओपन करके देख सकते हैं. So this pretty much it. Like I've ended with the quote, like every great developer you know is got there by solving some problems that they were unqualified to solve until they did it. So like मेरे को थैंक यू स्लाइड अच्छा नहीं लग रहा था लिखना, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट डाला. So yeah, that's pretty much it. Now hope like थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होगा, लोग you have something to take away. Yeah, that's pretty much it from me. इंटरेस्टिंग था, थोड़ा बोरिंग तो नहीं था. ओके, सो इफ देयर आर, आपके पास कोई भी क्वेश्चन या फिर आंसर हो तो आप पूछ सकते हो. यस, इफ यू डोंट नो रिएक्ट यू कैन यूज नॉर्मल फॉर्म्स एज वेल, बट इट वुड बी डिफिकल्ट. I think so, it should be there. Like I have created example block now, so there we can create the blocks. To edit the content, I don't think set props would work, set attributes would work. We can always try, but because we have familiarity with React, so we didn't explore it. We are using database to fetch components. Yes. So हमको page to nine में use करना है तो MongoDB use करना है. Can you repeat? हमने database से data fetch कर रहे हैं, जैसे हमने categories fetch किए, हाँ. components fetch किए. हाँ. database के लिए हमको MongoDB use करना है, page to nine. आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो. सो हमने क्या किया हमारे केस में,
वी गो बैक. हाँ हाँ, सो हमारे केस में हमने क्या कि ये जो सारे कंटेंट थे ये बाय डिफॉल्ट हमने लारावेल के थ्रू एक एपीआई एक्सपोज किया. अब एपीआई है लारावेल है तो आप कहीं से भी वहाँ पे डेटा ला सकते हो. वो एपीआई का जो कंटेंट है हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दिया और बाद में रिएक्ट के थ्रू लोकल स्टोरेज को एक्सपोज किया और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. गुड. एनीबॉडी एल्स? यस. हाँ, सो वो डेटाबेस में स्टोर होता है. लेट मी शो यू हाउ इट स्टोर. सो हमने यहाँ पे जो स्टोर किया कंटेंट, ओपन PHP my admin, go to demo app. दिस इज, ये हमारा टिपिकल पोस्ट टेबल है. ओके ये नहीं है, ये वाला डेटाबेस है. हाँ, जूम इन. So as you can see, this is the content. Now let's check how individual contents are stored. We copy paste it to code. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक ये वर्डप्रेस का खुद वो HTML डाल के करता है. सो यहाँ पे उसका प्रॉप्स है, यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे हमने जो HTML सेव किया वो है. उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो लाइक ये वर्डप्रेस खुद का HTML डालता है. अब लेट्स सी हाउ लाइक ये तो उसके बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स हो गए. अगर हमने कस्टम ब्लॉक्स क्रिएट किया तो वो कैसे स्टोर होते हैं. सो गो टू पोस्ट अगेन. लाइक से हमने ये ब्लॉक क्रिएट किया था. सेक्शन फीचर्स लेते हैं. डेट, ओके. वर्ड रैप. ओके, सो यहाँ पे देख रहे हो आप लाइक यहाँ पे सेक्शन आईडी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्डप्रेस का कंपोनेंट है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपने को पता है हमने यहाँ पे कस्टम क्या अपना स्लग रजिस्टर किया था. सो ये होगा यहाँ पे इन केस ऑफ सेक्शन. यहाँ पे हमने उसका ये नेम रजिस्टर किया था लाइक इसका कैटेगरी टेस्ट है और ये सेक्शन को बिलोंग करता है. ओके, सो ये यहाँ पे इस तरह से स्टोर होता है. नेक्स्टली यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स है लाइक सेक्शन आईडी एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट है. सो एट्रीब्यूट सारे यहाँ पे ऐसे स्टोर करते हैं. और लास्टली हमारा जो HTML फाइनली रेंडर होगा वो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके वो पूरा HTML इस तरह स्टोर कर देते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज़ बीइंग स्टोर्ड. हाँ, ओके. नहीं, सो ये तो हो गया ये कंटेंट का वैल्यू. ठीक है, अब लेट्स सी ये पोस्ट का जो व्यू फॉर्म होता है वो कैसे काम करते हैं. सो ये पोस्ट का व्यू है. जस्ट लाइक हम नॉर्मल कोई भी क्रड का व्यू होता है. यहाँ पे सारे कंपोनेंट जो शो करते हैं. सो टाइटल ऐसे रेंडर करते हैं और ये कंटेंट बिकॉज ये खाली HTML ही है इस तरह से. सो हम इसको लाइक लारावेल में जैसे HTML रेंडर करते हैं वैसे रेंडर कर सकते हैं. अगर हमको ये नहीं अच्छा लगा लाइक HTML तो ये पैकेज जो है हमको एक रेंडर करके फंक्शनैलिटी भी देते हैं. सो रेंडर का मेथड देते हैं. हम वहाँ पे भी अपना जो एट्रीब्यूट होता है कंटेंट करके वो यहाँ पे डाल के रेंडर कर सकते हैं. इसमें एक नया फीचर भी है लाइक सर्वर साइड कंपोनेंट्स रेंडर कर सकते हैं. वो एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन वो उन्होंने रिसेंटली अभी अभी लाया है. ओके, सो रेंडर फंक्शन हमको पैकेज से मिलता है. सो अगर मैं इसका यस, सो लेट मी गो थ्रू द मॉडल. मॉडल्स पोस्ट. यहाँ पे देख रहे हो हमने एक रेंडर्स कंटेंट करके ट्रेड यूज़ किया है जो हमको पैकेज प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सी कंटेंट जो है वो रेंडर होने की है. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली रेंडर एंड यूज़ द मेथड. सो हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम डायरेक्ट उसका HTML भी डाल सकते हैं पोस्ट डॉट कंटेंट. और लाइक कभी कभी होता है कि वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, रीडेबल नहीं होता है. हम मे भी उसको मिस यूज़ कर सकते हैं लाइक मिस अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइक वो दूसरी प्रॉपर्टी और इसका रेंडर कर सकते हैं. इसलिए पैकेज हमको ये रेंडर मेथड भी देते हैं. हाँ, सो इसलिए पैकेज हमको रेंडर मेथड भी देते हैं और वो उससे हम कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स?
बहुत बोरिंग था लास्ट, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया. यस. मतलब कि हाँ हाँ, वो तो हम कर सकते हैं ना. लाइक हमने यहाँ पे कंटेंट सेव किया ना, तो ये ब्लॉग का ये जो सेव मेथड होता है, हमको यहाँ पे जो भी फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने का होता है ना, लाइक कैसे HTML डिस्प्ले होगा, इमेज कैसे शो होगी, वो सब यहाँ पे सेव कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर, इन्फो बॉक्स. सो इन्फो बॉक्स में हमने क्या किया है, लाइक जब भी इन्फो बॉक्स सेव होगा तो डिपेंडिंग अपॉन स्टाइल कि राइट साइड का इन्फो बॉक्स है या फिर लेफ्ट साइड का इन्फो बॉक्स है, स्टाइल के हिसाब से हमने जो HTML यहाँ पे लिख दिया है. ओके. और ये जो HTML है एक्चुअल में वो लाइब्रेरी जो है इसको पार्स करेगी, जो भी डायनामिक जो एट्रीब्यूट्स है उसको रिप्लेस करेगी यहाँ पे, और वो डेटाबेस में स्टोर करेगी एज HTML. अब हमें वो HTML जैसे रेगुलरली रेंडर करते हैं अपन, वो ऐसे हम रेंडर कर सकते हैं. डिपेंड करता है. लाइक सपोज ये ब्लॉक के केस में कैसा है, हमने ये ब्लॉक ओके, हमने अगर मल्टीपल ब्लॉक्स यूज़ किए होंगे पेज में, बराबर. सो हर एक ब्लॉक का अलग होगा. सो मेरे को अगर यहाँ पे एक नया ब्लॉक ऐड करना है, हाँ हाँ, तो वैसे कर सकते हैं अपन. मी शो यू. सो ये होगा यहाँ पे मोस्टली. हाँ, बैक पोस्ट्स. जो इन्फो बॉक्स है, हमने जो पुराना देखा था कंपोनेंट, ऐसा हमने यहाँ पे दोनों स्टाइल बता दिए. लाइक एक स्टाइल में हमको कैसा चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए और कंटेंट राइट साइड चाहिए. दूसरे स्टाइल में हमको इमेज राइट साइड लेफ्ट साइड पे चाहिए और कंटेंट राइट साइड पे चाहिए. तो उस तरह से हम रेंडर कर सकते हैं. और डेटाबेस में भी ये जो है अलग अलग HTML के फॉर्म में सेव होगा. सो एक HTML का कंपोनेंट ये स्टोर करेगा और दूसरा HTML का कंपोनेंट ये स्टोर करेगा. सो अगर मेरे को डेटाबेस खोलना हो इसका, हाँ बराबर, हाँ डेटाबेस में ये जो पैकेज है वो कंपाइल करके चीज़ें स्टोर करता है. पोस्ट ओके. सो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो एक यहाँ पे इसने दो कंपोनेंट स्टोर किए HTML कंपोनेंट्स. एक इन्फो बॉक्स यहाँ पे है और एक इन्फो बॉक्स यहाँ पे है. दिख रहा है सबको पीछे से, जूम करूँ? ओके. सो यहाँ पे इसने फर्स्ट जो ब्लॉक का जो एट्रीब्यूट्स है, लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टोर किया और उसका HTML यहाँ पे स्टोर किया कंपाइल करके. नेक्स्ट सेकंड ब्लॉक के जो एट्रीब्यूट्स है उसने यहाँ पे स्टोर किए, यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पे उसका HTML. सो अगर हमारे पास दो तीन भी कंपोनेंट होते हैं तो रेंडर का जो सेव मेथड होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कंपाइल करता है और डेटाबेस में सेव करता है. That's it. Any other questions? So like let me ask you, अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे? फायदा तो यूज करेगा. हाँ. प्रोजेक्ट CMS बेस्ड है तो यूज कर सकते हैं. ओके. Yeah. I was just checking like you have paid attention or not. Yes. या अगर आपको रिएक्ट का भी नहीं हो तो आप नॉर्मल HTML तो रेंडर कर सकते हो वहाँ पे. ओके. हाँ, दैट्स इट फ्रॉम मी. यस. नहीं, मैंने डायरेक्ट उसकी जो स्टाइल्स होती है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दी थी. कहाँ गया ऐप डॉट लेआउट. या सो यहाँ पे जो इसकी स्टाइल्स होती है ना वो इंपोर्ट कर दी थी, और यहाँ पे हम जो खुद के स्टाइल्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं. हाँ. सो हाँ, अपने को मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है. अगर आप अपने पैकेज मैनेजर के थ्रू इंपोर्ट करके करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपन.
अपने को हमें JS फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है वो CSS, but because we are from Laravel, this was the simplest way to use it. Yes. Custom class, like we can use the function to custom one. Mini? Means there is one input. Yes. If I want to use the function, like choose the class for this input. Yes. We can use custom class also. So if you want to give direct input in the same form, you can, or else if you see here, it's not here. Let's first see how stock works. So यहाँ पे भी आप देखोगे, सपोज ये उनका खुद का इमेज कंपोनेंट है. सो यहाँ पे ये लोगों ने कस्टम टाइटल, कस्टम एंकर और नीचे एडिशनल CSS का क्लास ऑप्शन दिया है. यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन हम जो कस्टम ब्लॉक्स में क्रिएट करते हैं वो नहीं आता. उसके लिए गुटनबर्ग का एक और ब्लॉक कंपोनेंट है, वो हमको इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ करना होता है. सो वहाँ पे भी उसके अंदर जो HTML लिखेंगे वो यहाँ पे रेंडर होगा. हाँ, लाइक यहाँ पे आप क्लास लिख सकते हो, लेकिन वो जो CSS के जो क्लास का कंटेंट होता है वो आपको एक्चुअल अपनी CSS में लिखना पड़ेगा. या फिर आप अपना खुद का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक कस्टम साइज, और आप उसको खुद रेंडर करवा सकते हो उसके स्टाइल के हिसाब से. Yes, you can define this kind of option as well. So like उसका पैकेज का खुद का एक कंपोनेंट होता है, मे बी उसका नाम होता है पैनल एट्रीब्यूट या फिर साइड पैनल एट्रीब्यूट, वो चेक करना पड़ेगा. सो वो कंपोनेंट के अंदर जो भी हम HTML लिखेंगे ना, साइड पैनल एट्रीब्यूट, वो HTML यहाँ पे रेंडर होगा. सो और यहाँ पे फिर हम अलग अलग ऑप्शन उसको दे सकते हैं. Any other questions you would have? Okay, thank you everybody.